I'm very thankful to PDJ, Principal District Judge Udhampur, Hakim Vaisa, and other Ajay, Secretary this Dalsa, uh, Dinesh ji, and other brother judges and sisters, and we are all aspirants who have, and other advocates, also prosecutors, whosoever is present here, and whosoever is available afterwards, who will see this program. I'm feeling delighted here among you. But this session, which I'm told afterwards, this will remain an interaction. Just we, this will not remain a one side of it. We will discuss what is with you and what is with me. We will exchange. This is part. Otherwise, I will make a lecture here, and it will be one-sided of here, and it will not. You will not gain anything. Let us discuss. Uh, I think it is uh, it is needed that there should be academic for a candidate who is required to be qualified this examination. We should both have academic as well as this this practicing knowledge about the legal this education, the legal practice we will say, which we undertake while in court as an advocate, as judge, as prosecutors. So now let me start. So, thank you, sir. Thank you, madam. Okay, you have to attend the course also. So Mr. Ajay will be with us. So then let us. My concern main is that such is okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Ajay, go. Huh? Ajay, bye. Please. कोई बात नहीं. I think we will use both the languages in Hindustani, not pure Hindi, and as well as in English while discussing while interacting. You may please come here. Please come. Come. Hey, you are sitting there. मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ये प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी है और ये दिस दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू ये एक्ट जो है, ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये भी आपके आएगा, ये 82 का 1882 एविडेंस एक्ट भी आपका 1872, 1860 का एक्ट है हमारा जो आईपीसी। तो 61 का पहले होता था जो अपना क्रिमिनल प्रोसीजर को, और जो भी एक्ट देखोगे आप यू विल फाइंड बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बने हुए सारे सारे एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बने हुए। तो हम इसको कैरी क्यों कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, इट हैज सॉवरेन इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो बताइए जी, हाउ वी आर कैरिंग दिस बैगेज, दिस colonial legacy? This is a question to you, please. This can be a question in your prelim as well as how. Let us. I was also not doing earlier. I started reading and having research, then I got the best. तो क्या है आपका, कोई बता सकता है इसमें क्या है और कोई कैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये एक्ट हैं, पुराने हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट आगे से, ये तो कोई नहीं, जब इंडियन पार्लियामेंट तो नहीं किया ये, इट इज ए। तो अभी पढ़ते पढ़ते ना, जब मैंने पढ़ रहा था मुझे लगता है एविडेंस एक्ट था ये कोई था, तो मैंने पढ़ते पढ़ते मैं वो आया, वो
मैं बताइए बताइए, करो बात, आप आपस में बात करो और मुझे बताओ कि क्या मसला है। हाउ वी आर फॉलोइंग इट, क्यों ये कॉलोनियल लेगेसी वी आर कैरिंग इट। क्योंकि ये इधर बातें ऐसे ही होंगी आगे भी, मैं बातें करूंगा वैसे ही करूंगा, जो ऐसे वन साइड में पढ़ा दी सेक्शन 1 पढ़ के जैसे पढ़ते हो आप, उससे कुछ नहीं निकले। मैं बहुत मेरे पास क्वेश्चन है, यही बातें होंगी जो तो ये क्या है, आप निकालो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जे 372 निकालो कॉन्स्टिट्यूशन। अपने मोबाइल पे निकाल, मोबाइल में निकालो, जहां मर्जी निकालो, मेरे पास अपनी बुक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 372, तो इसी किस्म का वह रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पहुंचेंगे हम। तो ऐसे में इधर बातें करके टाइम वेस्ट करके चला गया। कॉन्टिन्यूअस ऑफ, सुनिए, कॉन्टिन्यूअस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर अडॉप्टेशन, notwithstanding the repeal by this constitution of the enactment referred to in Article 395, but subject to other provision of this constitution. All the law in force in the territory of India before the commencement of this constitution. You understood? What is the mandate of this section? This section is saying the law earlier enforcement prior to coming into force of Constitution of India would be adopted as, आगे आ जाओ, आगे थोड़ा बोलो, shall continue in force therein unless until altered or repealed as amended by competent legislature or other competent authority. आगे फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग, ये आगे आ गया ये सारा, नथिंग इन, मतलब मेन जो बात है, जो हमारा इशू है, टॉपिक है बात करने का, कि जो पुराने लॉ थे तो ये इस प्रोविजन से हमने उनको अडॉप्ट। हाँ, जैसे अभी चर्चा चल रही है, यू माइट हैव नोटेड दैट 3 बिल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, जो पहले इसमें भी मैंने बात की है, तो उसमें आ गया भारतीय न्याय संहिता और दूसरा भारतीय नागरिक संहिता, और दूसरा आ गया एविडेंस साक्ष्य। तो ये अभी इंट्रोड्यूस हुए। हाँ, इनसे आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर उसमें रिपील हो जाएगा, पहला मॉडिफिकेशन अडॉप्टेशन होगी। तो ये जो प्रोविजन है का, ये देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं करेगा तो इनको हम अडॉप्ट करेंगे। ये इसका एक मामला, जो मैंने ये इसलिए कहा कि हम सारे एक्ट पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हाउ वी आर कैरिंग। तो ये 372 ये मेरे नोटिस में आया था रिसेंटली, तो मैंने आपको ये थोड़ी सी बात इसकी, ताकि आगे हमने यही सारे एक्ट पढ़ने। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो मैं थोड़ा सा अभी वापस आ जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको जो फिल्म में आना है ना, आप देखेंगे 4 आंसर्स मिलेंगे आपको, 4 होते 3 4 आपको 1 ईयर टू पहला एक मैं बात बता दूं आपको सीरियसली डीपली पढ़ना है विद कंसंट्रेशन। यार ये क्या, जैसे एक जैसा बोलते हैं ना, आपने जज बनना ना, तो आपको पेशेंट पूरा पढ़ो, जो 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं, क्विक भी होना चाहिए, ये नहीं है या एक पढ़ते पढ़ते सो जाओ उसको। या जज देखें आपके 2 मिनट में, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और अदर जज 1 मिनट में बात समझते हैं। अगर ये बातें अगर नहीं समझे तो क्या होगा, तो फिर शाम को इधर ही रहेंगे। हमने कहीं देखा, वो हमारे जजेस भी थे, तो वो इधर किताब खोल ली, इधर फाइल फेंक दी, इधर फेंक दी, शाम को घर को 7-8 घंटे तो कंप्यूटर पे बैठा, रात को भी तो तंग, घर वाले भी तंग, तो खुद भी तंग और जनता भी तंग। जनता मीन क्या, एडवोकेट्स हैं। ये मत सोचो, मैंने किया कल, हमने कल स्पेशल प्रोग्राम था किया इसका,
चाणक्य का हमने वहां किया, तो हमने ये कहा कि भाई ये मत जिष्णु बात है, आप बन जाओगे, जज बन जाओगे, जे अपने केएस ऑफिसर बन जाओगे, हार्ड तो डेडिकेटेड होना। तो कहने का मतलब मेरा इन शॉर्ट ये है कि इसको आपने पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन क्या है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मैंने पेपर देखे जो पीछे थे, उसमें है रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकेटा। रेस सबजुडिस एंड क्या फर्क है रेस सबजुडिस और रेस जुडिकेटा में? कौन सी है सेक्शन आएगी? सेक्शन 10 आ जाएगी, तो दूसरे में आएगा। और एक और है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो वो जो दूसरे हमने हाई कोर्ट में जो कंस्ट्रक्टिव, तो रूल ऑफ एस्टॉपल क्या है, इसी के साथ आते हैं ना, एडमिशन भी इसी के साथ जुड़ जाएगा, कन्फेशन भी इसके साथ, कन्फेशन क्रिमिनल साइड आ जाएगा, एडमिशन का भी हो जाएगा। तो एस्टॉपल किस में केसेस में आता है? क्या एस्टॉपल अगेंस्ट लॉ मानते हो? क्या एस्टॉपल अगर किसी ने लॉ के अगेंस्ट कोई बात मान ली तो बाय दैट इज वो भी देखना है। तो वो जनरली जो रूल ऑफ एस्टॉपल होता है वो किसके, वो लॉ के अगेंस्ट प्रोविजन में। और आपने देखा जो आपके जो एविडेंस एक्ट के, मैं बीच बीच में थोड़ा सा टच करता जाऊंगा सारा एविडेंस एक्ट का, जो एक है 112 चलते जाओ ना, पहले 11 ये तो आ गया ना, 115 ये आ गया रूल ऑफ एस्टॉपल, इसी के कंसर्न है, इससे पहले पीछे 112 है पैटर्निटी प्रिजम्पशन रिगार्डिंग, तो 114 है, उसमें काफी आते हैं प्रिजम्पशन, तो 116 है, उसमें आ जाता है आपका एविडेंस एक्ट, जे 1 से 3 जब तक वो सरेंडर वापस पोजीशन नहीं करे, इस किस्म के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जे जो आपका, अभी मुझे बताइए जे एक हम सुबह में सुन रहा था, डिस्कशन आ रही थी, पार्लियामेंट जो एक इम्यूनिटी होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, you are knowing about the Canadian government have hosted our this diplomat and we are about to, तो क्या डिप्लोमेट जो डिप्लोमेट है उनका फॉरेन कंट्री के नाम पे, इस पे 3-4 बातें मैं इसी में करूंगा। क्या उनको इम्यूनिटी है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन? आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उनको दे आर फ्रॉम, तो अगर वो ओवरस्टे करते हैं तो गवर्नमेंट ने सुबह सुनना, उन्होंने एक वार्निंग दे दी कि भाई आप निकलो यहाँ से, अदरवाइज यू वुड बी, मतलब ये एक उनको सॉवरेन इम्यूनिटी हर एक को है, हर एक कंट्री का अपना है। तो दूसरा क्या हो गया 105, अभी दूसरी जगह जाएंगे हम, अभी पार्लियामेंट को भी इम्यूनिटी है 105 कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये जा रहा हूँ कि कहाँ किस किस को इम्यूनिटी मिली, तो इम्यूनिटी वो क्या है जो 105 आप कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसमें क्या है, और क्या आज वो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिविजिट दैट पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है, आर यू नोइंग अबाउट? तो हम कैश ब्राइब फॉर वोट्स का था, वोटिंग की ब्राइब लेके, वो ब्राइब लेके वोटिंग की थी अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने पेश किया अपोजिशन में, मुझे लगता है पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे था, तो झारखंड की मुक्ति मोर्चा के जो सोरेन थे, इन्होंने क्या किया था, ब्राइब दी थी कि हम वोट करेंगे अगेंस्ट वोट ऑफ नो। तो फिर वो क्या हुआ, दिल्ली जो वहां कोर्ट थी, तो उन्होंने किया इस एंटी करप्शन एक्ट में केस डाला, तो उस कोर्ट ने उनको चार्ज लगाना था, उन्होंने चार्ज बनेगा, तो उन्होंने चार्ज लगाया, तो हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने भी कहा नो यार ये इम्यूनिटी नहीं चलेगी, जो प्रिविलेज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग देखना, नो सुप्रीम कोर्ट इज, आप पढ़ लो जो लॉ लाइफ में जो होती है, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिविजिट दिस चैप्टर। मैंने एक प्रोग्राम भी इस पे किया, मैंने कहा अगर इन लोगों को इम्यूनिटी है, जो भी क्या करते हैं, जो भी ये करते हैं पार्लियामेंट में करेंगे, असेंबली में लेजिस्लेचर करेंगे, ये इम्यून है, चाहे किसी को गालियां दें,
चाहे किसी का बोर्ड पैसे लेके वोट दे, क्वेश्चन उठाते हैं। जो अगर कोई उनको कोई ग्रुप, इंडस्ट्रियल ग्रुप, कोई ग्रुप कोई भी हो, अगर कोई बंदा भी कोई पैसे देके इनसे जो मर्जी क्वेश्चन करवा लो, अगेंस्ट ब्राइब, अगेंस्ट, ये ओपन है और ये इम्यून है। उस जजमेंट में क्या कहा, उन्होंने कहा जिन्होंने पैसा लिया और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे वो इम्यून है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। ये जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो ये उनको और उनको डिस्चार्ज किया गया, मतलब वहां से। और जिन्हों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी आउटसाइड पार्लियामेंट, उनको जो कॉन्स्पिरेसी में दूसरे थे, उनको नरसिम्हा राव को भी उन्होंने कहा कि इस पे पैसे देने के लिए, मुनेज करने के लिए कौन है, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन आपको पता है 120, उसमें वो डाल जे एक इम्यूनिटी है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक आता है सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट, हाई कोर्ट जज का कंडक्ट, क्या डिस्कस हो सकता है पार्लियामेंट में? पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, whether his conduct can be discussed before whatsoever, तो नहीं कर सकते। Is there any exception? अच्छा, अच्छे मुझे लगते हैं आप लोग अच्छे हैं, जो हमने पहले क्लास ली जम्मू में, वो बोलता कोई नहीं था। तो आप लोग को इम्पीचमेंट, सबने जो कहा कि वो सिर्फ इम्पीचमेंट है, तो इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है? वो भी एक पूरा बड़ा है, 100 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। चलो वो इम्पीचमेंट मोशन में वो एक्सेप्शन है कि वहाँ पे आप जज के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हो, कोई सिस्टम है उसमें, एक तो वो आपका एक्ट है, उसमें इंक्वायरीज है, जजेस इंक्वायरीज है, उसके प्रोसीजर अडॉप्ट करना, वो वाली बात आ है। तो ये ये रेस इफ्सा लीटर पढ़ा है, रेस इफ्सा स्पीक्स, जे आपने जो नेग्लिजेंस वाला होता है, जो आपने लॉ ऑफ कार्ड, इसमें भी, तो इसमें क्या है, जे मेडिकल नेग्लिजेंस की बात होती, तो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात, और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस पे सुप्रीम कोर्ट जब लॉ की इमीडिएट, आपने ये भी पढ़ा होगा, जब एफआईआर लगानी है 154, 156 में, तो इनको एक्सेप्शन में रखा, इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन में है, जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ कोई इंक्वायरी की जरूरत है, जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, उनको रखा है। तो इसका है कि मेडिकल लीगल, इस पे रिवर्स बर्डन आ जाता है, किस पे? हॉस्पिटल पे। आपको पता है रिवर्स बर्डन क्या होता है? रिवर्स बर्डन आता है कि भाई इनके पास पेशेंट था, जे अंदर थे, 106 है, क्या है वो सेक्शन, बर्डन प्रूफ रिवर्स हो जाता है 106, स्पेशल नॉलेज ऑफ द कंसर्न। जैसे आपको देखा लॉस सीन थ्योरी होती है, जब कुछ नॉलेज होती है एक्यूज की होती है, तो उसमें आ जाता है रिवर्स बर्डन, जैसे पॉक्सो में रहता है, जैसे पॉक्सो में है, एनडीपीएस में, यूएपीए में है। एक मैं इसमें अभी सर की बात करूंगा, मैं आगे और ले लूंगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग ना, क्या ये बताएं जो आप कहते हैं, ये बड़ा मैंने उधर भी बात की और ये मैं बात करता हूँ कि आप कहते हो कि बर्डन उस पर चला गया केस, तो प्राइमरी बर्डन डिस्चार्ज करना है, प्रोसिक्यूशन ने नहीं करना, ये लो प्रोसिक्यूशन। प्राइमरी बर्डन क्या डिस्चार्ज होगा? प्राइमरी, सुनो मेरी बात, मैं अभी एक क्वेश्चन, एक चार्जशीट आ गई एनडीपीएस के नीचे, ठीक है, जांच बेटी के नीचे, जहां कोई भी पॉक्सो के, सर ने कहा पॉक्सो के नीचे एक आ गई आपके पास चार्जशीट, कोर्ट में आ गई, तो क्या प्रिजम्पशन ये ड्रॉ करोगे कि अक्यूज्ड पहले देगा एविडेंस? पहले तो प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड, ठीक है, दिस इज एडमिटेड। रिवर्स बर्डन का क्या होता है? देखिए, ड्रामा वैसा ही केस नहीं होता, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना, ये गलत फहमी छोड़ो, आपने दिमाग में निकाल दो। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव ऑल केसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अभी अंदर की बात मैं बताता हूँ क्या है, जो आप आ जाओ पहले एनडीपीएस,
जे नाले जो है ना तो यूनिवर्सिटी वाली फोटो, जे अभी आ जाओ कोड वाली नाले में, जो आपको काम करना है। हम तो कहते हैं सारे जो बच्चे हमारे हैं यहाँ पे सारे बन जाए हैं। तो उसमें क्या है, क्या होता है, एग्जाम्पल एक घर से एनडीपीएस का कोई सर्च हुई, वहां पे मिल गया कंट्राबैंड, मिल गया नार्कोटिक मिल गया, ठीक है। घर में 10 आदमी रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियस पोजेशन किसका था, ये किसकी ड्यूटी है, ठीक है। आगे जाते हैं, बाद में आते हैं उस पर, आप बात करो। चलो एक गाड़ी जा रही है, पैसेंजर कैरियर, तो वहां पैसेंजर एक बीच वाला रास्ता होता है, कॉरिडोर कहते हैं गाड़ी का, जब जहाँ कोई पैसेंजर व्हीकल है, छोटी व्हीकल है, बड़ी व्हीकल, उसमें से मिलता है। पुलिस बुलाती है साथ वाला, जैसे ये बैग मेरा है तो ये मेरा बैग है ना, ये आपको भी कैसे चाहिए ना, आपको करना, पुलिस उठाती है आपको, आप पे चालू कर, तो प्राइमरी वर्क उसने चालू कर, एक रंसीस किसने, जो एनडीपीएस, प्राइमरी ड्यूटी किसकी है, जे वो जो सारे कर रही है। जब फिर ये प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, आर यू नीड अबाउट दिस, अक्यूज का कितना रोल है, एलबी हो या जहां कहीं भी रिवर्स बर्डन होगा उसको बजान नहीं जाना है। अभी बजान वाली बात करूंगा, बजान वाला कहां कैसे आया, क्या है, यू अंडरस्टैंड, कि वो क्या बात होगी कि वो उसका रिवर्स बर्डन, अगर ये फेलियर होता है तो जाए नहीं टूटेगा, पर तुझे करूंगा पहले आप ये तो क्लियर कर थोड़ी बात, तभी ये जो ये ट्रायल है ना, जो ट्रायल आसानी से नहीं, जजों को भी कहीं समझ नहीं आती, मजिस्ट्रेट्स को भी, कई वकीलों को भी, ये ऐसे खिचड़ी पकती है। तो वो देखता है, जब लास्ट में देता है देता है नॉट प्रूफ, अंदर क्या है क्या नहीं, जजमेंट बाद में लास्ट में तो देखेंगे। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बस जो भी है 3 बातें मैं आपको ये जा रहा हूँ, लॉयर्स के लिए 2 काम बड़े मुश्किल में, डिफिकल्ट से, कौन कौन से, एक प्लीडिंग लिखना, चाहे वो आप एक पिटीशन लिख लो, किसी मैजिस्ट्रेट के पास कर लो, डिस्ट्रिक्ट जज के पास कर लो, सेशन जज के पास करो, जहाँ हाई कोर्ट में जो भी लिखे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर, कोई भी है ये काम है उसका। दूसरा है क्रिमिनल केस में क्रॉस एग्जामिन का, तो जज का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, डिफिकल्ट काम कौन सा क्या काम करना है, जैसे बाकी ऐसे करना है, लिख रहा है इधर रीडर लिख रहा है, इधर दूसरा कर रहा है, दूसरा डिसीजन मेकिंग टू हैव जजमेंट, जो हम बात कर रहे थे जजमेंट लिखना, जजमेंट लिख देते हैं, लेकिन वो जजमेंट बोले, जो अपनी बात भी करे, कट पेस्ट ना हो। आप देखो जजमेंट क्या होती है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा अभी, तो सब लोग कहेंगे, तो ये अभी भी एक जजमेंट आप याद रखना, जो आपको मर्डर ट्रायल में आती है, बिरसा सिंह की 1959 है या 51, वो आज भी एप्लीकेबल है। ये जजमेंट जो पुरानी जजमेंट है, अभी भी प्रीवी काउंसिल के जजमेंट जो है अभी भी फॉलो की जाती है, और हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट जो छोटी छोटी जजमेंट है जो एक टाइम पे पुराना, आप KLJ निकाल लो 97, जो उसको भी जैसे देखते हो शॉर्ट बिल्कुल करेक्शन का, अभी जजमेंट कहीं इधर से चलता है तो आखिर में कहीं और चले जाए, वो उसको दोनों को इकट्ठा करो ना, पता नहीं चलता यार ये कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, चलना है दिल्ली, पता इधर उधर लाहौर से घूम घूम के और उससे लास्ट में वो निकाला। तो ये चीजें जो है ना, आप एक चीज को पकड़ो फिर उसको एंड करो, तो हम आ जाएंगे जो वापस रिवर्स करो, समझ गया रिजर्व। अच्छा अभी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम जुडिशियल अकेडमी में करते हैं, तो मेरे साथ एक हाई कोर्ट जज साहब, तो और भी लोग थे हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल अकेडमी में जाते हैं, अपने भोपाल में जो हमारी जुडिशियल अजय जी भी गए होंगे, हम सारे जाते रहते हैं बीच में। वहां पे एक क्वेश्चन आया कि आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा, उसमें क्या लिखे हैं, प्रूव नॉट प्रूव डिस्कस, सेक्शन 3, सेक्शन 3 है ना, तो जो सिविल और क्रिमिनल को इक्वल रहता है, बताया फर्क कि
भाई उसमें ज्यादा हो, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहाँ चला है? बात करते हो ना जी प्रोसिक्यूटर कहाँ है, ये कहते हैं ना, तो ये इनको कहते हैं नहीं जी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने साथ करना है, जो हम बातें कर रहे हैं ये कहां से आया है बताइए? जबकि एविडेंस एक्ट में कहीं है, कहीं पढ़ो आपने लिखा है कि प्रोसिक्यूशन इन ए क्रिमिनल ट्रायल प्रोसिक्यूशन इज सपोज्ड टू प्रूव ए पर्टिकुलर ऑफेंस पर्टिकुलर इन ट्रायल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फ्रॉम देयर वी हैव गॉट इट। सर यही क्वेश्चन मैंने पूछा था जस्टिस आर बसंत है सर, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हमारी पे कमीशन जो भी थी उसमें भी होती है केरला हाई कोर्ट से। बताया सर उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने उनसे पूछा ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने कहा सर ये क्या कि जजमेंट कॉन्सेप्ट से, क्योंकि एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि देखिए सिविल की कॉन्सिक्वेंसेस और क्रिमिनल की कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अलग अलग है। सिविल में ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी चले जाएगी, आपसे आपका लॉस ही होगा, बट उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया मैं समझ बट कहते हैं क्रिमिनल लॉ में कॉन्सिक्वेंसेस जो है मुल्जिम के लिए दे आर वेरी हार्श, he may be subjected to death sentence, imprisonment. Therefore, there are two different standards have been set for civil and criminal law. कहाँ है? Then he says law has evolved like this that क्योंकि सिविल में इतनी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होती हैं, इसलिए आई एग्री। ये तो जो आपने कोई जजमेंट कोई रेफरेंस वो नहीं उन्होंने बताया, बस यही चीजें हैं ना आज हम बात करने जा रहे हैं। आप तो सारे आधी बात थोड़ी चलेगी, आधी बात ही कही कही जो आपने कही उनका भी रिप्लाई यही था जो सर ने कहा जो वहां पे था, लेकिन एक जैसा थे सचिन जैसा हो गया सर जो मैंने बोला ये उन्होंने सवाल पूछा जो वहां पे थे उन्होंने, फिर एक वहां पे एक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रहे थे जो राजीव गांधी के केस में मद्रास के और प्रोसिक्यूटर थे, वो हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने ही किया जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, जब आपने बात की तो नेचुरली जब आप में से कोई उठेगा ये सर ये नहीं दिया है, मैंने भी हमने तो देखो ना हम जो अपना एक्सपीरियंस लेके आपके पास सर ने जो एक्सपीरियंस पूछा इन्होंने आपसे शेयर कर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है ये प्रीवी काउंसिल्स का ये जो मैं अभी पढ़ के भी आपको बताऊंगा, प्रीवी काउंसिल हम फॉलो कर रहे हैं, हमने कहाँ से हमारा ये लेगेसी कहाँ से है, ये कॉमन जो लॉ अडॉप्ट करते थे कोर्ट्स जो इंग्लैंड में करते थे वी आर फॉलोइंग दोस, और नानावती का केस है ये जो इसमें केएम नानावती और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुबह में पढ़ते पढ़ते रूल्स ऑफ एविडेंस लिखा कि मैंने ये अपना थोड़ा सा नोट बनाया था, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेम है, स्टैंडर्ड ऑफ रूल, अभी बात आगे स्टैंडर्ड ऑफ रूल मतलब ये थोड़ा सा है ना वो इसकी बात है स्टैंडर्ड ऑफ रूल बाई हायर इन क्रिमिनल जर्नल क्या है, आपको एक आपने पढ़ी होगी रेशियो जहां आप बात करते हो, अगर 99 इनोसेंट अगर कहीं लगते हैं कि भाई ये इनोसेंट है और हम इनके खिलाफ साबित नहीं कर सकते तो उनको बरी कर दो, एक भी इनोसेंट अगर जहां डाउट है एक्यूज है आपको आधा है जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं जाना तो उनको बरी कर दो, एक इनोसेंट भी सजा मिल जाना चाहिए, ये हमारा इनोसेंट और प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन डेट ड्रा की जाती है कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट टिल इज गिल्ट ऑफ रोल डिक्लेयर, जी हमने कैरी कहां से की, ये वहीं से कैरी किया जहां पे जे जो इन इंडिया वी फॉलो the England presumption of innocence to prove guilt on prosecution exception जो 105 की जे केएम नानावती के केस में डिस्कस किया है और जो इसमें है कि भाई जी फॉलो वहां से किया उसमें डिस्कस किया गया, तो क्योंकि उसका उस केस का भी कई बार पूछते हैं इसमें उसकी हाँ उसमें भी आता है ये नानावती का केस पता आपको, पिक्चर भी आई थी अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी, इसके बाद जूरी सिस्टम को जो है अबॉलिश कर दिया गया, उन्होंने कहा पब्लिक ओपिनियन से स्वे होकर जूरी ने गलत फैसला दिया, क्योंकि जज्बात होते हैं ना, वो एक आर्मी ऑफिसर था लोगों का था कि उस वक्त अच्छा नहीं समझा जाता था, आज तो अडल्ट्री खत्म कर दी है, आपको पता है अडल्ट्री इज नाउ नो, तो
उस वक्त ये भी अडल्ट्रस जजमेंट कौन सी है जिसमें अडल्ट्री को बताया गया है? पूरा टाइटल के जोसेफ शाइन वर्सेस ये पूछते हैं। ये क्या अडल्ट्री, ये अडल्ट्रस, ये जो प्रैक्टिस, ये जो करता है, कहीं और काम आ सकती है। स्टिल और आज अभी जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, परहैप्स उन्होंने कहा था ये बेशक इसको क्रिमिनल लॉ में इन्होंने आईपीसी में कर दिया है, और अगर आर्मी लॉ में ये पनिशेबल ऑफेंस है, स्टिल दे कैन टेक प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द आर्मी। वहां से नहीं स्ट्राइक डाउन हुआ, आर्मी मिसकंडक्ट है जी क्या हमारे उसमें भी है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में भी अडल्ट्री को जो है उसी आईपीसी के पर्पस के लिए उसको वाटर डाउन किया गया है। बिल्कुल। व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ आर्मी एक्ट। आज सोडोमी 377 है, उसको कितना किया गया है, किस हद तक उसको रिटर्न किस किस हद तक वो किया गया है। इट हैज नॉट बीन एंटायरली थ्रोन आउट फ्रॉम द स्टैच्यूट। क्या नवजेत किसका केस है पंजाब का, उसमें उसको भी कि अगर फोर्सिबल वो टू अडल्ट्स कैन उनके खिलाफ कंसेंट है, वो जजमेंट भी आप देख लीजिए। टाइटल ये आपको रिफ्रेश कर रहे हैं आपके मुंह को, ये सारा आपके पास है, होना चाहिए। हाँ नवजेत है, नवजेत है, तो ये चीजें यूथनेसिया वाली जजमेंट मैंने आपको बताई थी, जिसमें स्पेसिफिक यूथनेसिया को लीगलाइज किया गया है। कौन सी वाली है? लिविंग विल जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया। अभी मैं एक और उसी पे बात, क्या राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, ये जो थी जो अपना आर्टिकल 21 राइट टू डाई है। राइट टू डाई है। अभी किस जजमेंट में? पहले किसमें था? ज्ञान कोर सब्सिक्वेंट है, लगा लो। पहले वाली कौन सी थी जिसमें कहा गया था नहीं है? नहीं इसमें भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूंगा क्यों है, ये भी मैं बता दूंगा। आधी नॉलेज नहीं है आपके पास, मैं पूरी करूँ। अभी भी नहीं है। अभी क्या है, जो आर्टिकल इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट एंड ग्रांट परमिशन, आम कोर्ट में जो आप कहते हैं इंथुसिया, जो वेजिटेटिव लाइफ में, तो वो एक प्लेस बना के भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर उसको इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिक केसेस एक्सरसाइज करता है। उसमें ये राइट टू राइट अलो करता है। जहां अपने वो एक दिन ये भी क्वेश्चन आया था, एक मार्क एक्सरसाइज कर रहे थे, जो जैन प्रैक्टिस है, जैन में प्रैक्टिस है, वो भी जो तो अपना और करते हैं, छोड़ते हैं शरीर, वो भी एक आपको वो उसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार, ये भी आपको आइडिया। तो ये आर्टिकल 21 में बिल्कुल नहीं है, वो स्पेशल केस है। जैसे इररेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, वाइदर इट इज अ ग्राउंड नो, तो उसमें क्या हुआ, उसमें स्पेशल केस सुप्रीम कोर्ट करता है, वो भी इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन करता है। पर्टिकुलर केस देखते टोटली ब्रेकडाउन है, मतलब है ही नहीं कुछ रहा, तो उसको वो अलो करता है। ऐसे ही म्यूचुअल डाइवोर्स में बेव करता है इस पहले, अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया, ट्रायल कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मुझे लगता है कि एक्ट में वही 18 मंथ्स 1 ईयर सेपरेशन एंड और 6 मंथ्स सेकंड मोशन कूलिंग। उन्होंने कहा था जो वो आर्टिकल 142 पहले खुद करते थे, उन्होंने कहा यार ग्रांट केस इज नाउ बिफोर सुप्रीम कोर्ट, लेट्स द ट्रायल कोर्ट आल्सो अप्लाई दिस इन एक्सेप्शनल केसेस, जहां तो कोई जरूरी है, जहाँ पे एक केस चल रहा है। मैंने भी किया था, मैं मैट्रिमोनियल जज से, तो आई हैव मेड एक्सरसाइज। उसमें क्या था कि आगे ही केसेस पेंडिंग थे तो बिटवीन म्यूचुअल डाइवोर्स के, तो वो हमने किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये काफ़ी, ये पहले की जजमेंट कौन सी है, 2010 वाली है, मुझे लगता है 2017 में, तो मैं यहाँ पे था
उसमें तो ये हमने हटा दिया। तो ये आ गई, ये एक जगह से कहाँ पहुंच रहे हैं, सारी जगह हैं, सारा यही बीच में हमने हिंदू आगे टच करते हैं, क्योंकि बीच में जो कनेक्टेड बातें हैं ना। तो ये थोड़ा सा एविडेंस एक्ट को टच करें। ये एविडेंस एक्ट में मैं मोटी मोटी बातें बोल, एक आ गया आपका सेक्शन 3, ठीक है, एक फैक्ट, ये फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट इन इशू तो सारे होंगे, कंट्रोवर्सी फैक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट है, ये तो डायरेक्ट एविडेंस ही होता है एक। तो एक जो रेलेवेंट फैक्ट्स है, ये कैसे आपने, ये कौन सी एविडेंस है, जैसे ये क्या हियर से एविडेंस जो है कि एडमिसिबल है, सारे बोलेंगे, जज भी बोलते हैं, वकील बोलते हैं नहीं है, एक्सेप्शन बताओ कहाँ से शुरू हुई, शुरू करो ना, कहाँ से हुई कहाँ तक है, सेक्शन 6 आप पूरी बताओ ना, 55 तक पढ़ो क्या है, हाँ सेक्शन 6 से लेके 55 तक पढ़ो, क्या क्या है, 55 तक पढ़ते जाओ एविडेंस। कितनी एक्सेप्शन है बता दो। बता नहीं, ये तो ये है ना, बीच में से निकाल ली, आप 55 तक पहुंचो, जो सेक्शन जो आपके पास हो गया एविडेंस है, ये सारा हियर से। हियर से क्या है, जो आपने डायरेक्ट नहीं देखा, देखो क्या है हियर से, क्या है, रेस्ट गेस्टिंग 6 सेक्शन 6 है भाई, कोई जिसने कुछ अभी, लेकिन होना चाहिए उसकी कंटिन्यूशन ऑफ दैट नॉलेज। बच्चे एक रेप हुआ, किसी को मॉलेस्ट किया, या कोई अक्रेंस हुआ, तो वो जा रहा था, तो उसने कहा क्या हुआ, मर्डर किया, ये हाँ, इनकी कोलैबोरेशन चाहिए, इसकी कोलैबोरेशन चाहिए, चेन कंप्लीट चाहिए, लास्ट सीन थी, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए ये चीजें हैं। तो जैसे अभी बात करेंगे, जो आप बात कर रहे थे, मोटिव है, मोटिव अंदर है, किसी की बात बोलेंगे, कैसे निकालेंगे, कंडक्ट कैसे निकालेंगे, पढ़ते जाओ ना सेक्शन जो 7 जैसे 6, 7, 8, 9, 10, ये सारा उसी में से निकल जाएगा। 11 है, 12 है, एडमिशन है, ये सारा आपका डाइंग डिक्लेरेशन है, ये जो आपके कन्फेशन वगैरह है, रिकवरी है, टीआईपी देखिए आप, टीआईपी भी हियर से है, टीआईपी बिल्कुल, कि कोई बता रहा है ना यार, ये वो डायरेक्ट एविडेंस। अच्छा आगे आप आ जाओ, इसको सारा निकल जाएगा आपको। जो ये वाली एविडेंस है, ये हियर से एविडेंस कोई इग्नोर नहीं। हियर से क्या है, हाँ हियर से क्या आता है कि मैंने बात आपसे की, तो अगर बीच में चेन टूट गई, इन्होंने इनको बताई, तो मैंने पूछा भाई आपको कैसे पता चला, मैं बिल्कुल सिंपल लफ्जों में समझाऊंगा, बिल्कुल ओपन। मैंने पूछा भाई आपसे पता है, आपने कोर्ट में दे दी स्टेटमेंट, सर मुझे यहाँ से पता चला, जे एग्जाम्पल प्रोवाइड कोर्ट में आपने चेन, और मेरी बात मैंने इनको बताई, मैं एग्जाम्पल हो गई, आपने इनसे सुनी, मेरे से नहीं ना सुनी, जे एविडेंस जो ब्रेक हो गई, ये चेन ब्रेक कंप्लीट नहीं, इसको कहते हैं जो, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो हियर से एविडेंस, ये थोड़ी प्रिजम्पशन ड्रा करनी है कुछ केसेस में, जैसे लास्ट सीन थ्योरी है, जो फाइन उसमें कुछ वो, तो ये जो आप इसको स्टडी करोगे, तो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे प्रूव होती है, किसके सामने होती है, यू माइट बी किसी के सामने भी हो, कोर्ट हो, रिटन हो, कुछ हाँ तो आप कोर्ट को ट्रस्ट करते यार, ये नेचुरल, ये वाक्य होगी, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई वो बात करते उसमें, आज तो कोर्ट हुआ ब्लंट देखता है किसका है, 3 डाइंग डिक्लेरेशन होती है हमारे पास सेशन ट्रायल में, तो वो भी एक ये भी आ गया। अभी आगे मेरे दिमाग में सेशन ट्रायल, अभी कितने किस्म के ट्रायल हैं, से शुरू करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना अंताक्षरी खेलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रायल बताइए, ट्रायल कितने किस्म के हैं, क्रिमिनल कोर्ट के एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कितने हैं, एक ही बंदा बताओ भाई, एक ही बंदा बता दो, आप बता दो। हाँ, और समरी ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट होना है,
कोर्ट नहीं करना है, समझ रहे हैं। एक मतलब इसका सिंपल मतलब हो गया 3 ट्रायल है, मतलब जिनका प्रोसीजर डालना हमें प्रोसीजर देखना है। तो सेशन ट्रायल में मुझे बताइए, कॉग्निजेंस कोई केस है जिसमें डायरेक्ट लेता है? डिफेमेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन सा लेवल का चाहिए? कुछ खास कैटेगरीज की बताएंगे। गवर्नर आगे प्रेसिडेंट आगे। हाँ, वो जो देख लो आप, वो उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। मेरे पास एक केस था यहाँ पे, सेकंड इशू सेशन जज में मंगतराम शर्मा थे, तो प्रोसिक्यूटर थे राजेश कोतवाल, स्पेशल पीपीओ तो वो मंत्री थे, तो उसके खिलाफ किसने कुछ स्टेटमेंट दी थी, देन दैट केस वाज कंप्रोमाइज हो गया था आपस में। तो वो इसका फोन आया था एक, वो हाँ वो आपका बड़ी बगल के साथ उसका वो कुछ बोला था उनके खिलाफ कोई करप्शन के बारे में, तो उन्होंने तो ये हो गया वो एक्सेप्ट। बताइए कौन सी सेक्शन है जो बोलती है नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस अनलेस द केस इज रिलेटेड टू 19, इसमें सेक्शन है सीआरपीसी में जो कहती है 194 ना 193 देखिए perhaps 193 होगा, और जो कमिटल है मैजिस्ट्रेट ने करना, वो जो बोल रहे हैं 209, जो 205 नहीं था पहले में, 205 पहले में था जो हमारा था, अब 209 193 हाँ 93 193 जिस कांग्रेस जैसे आपने जैसे एडिशन ऑफ द करते थे तो 90 जैसे कि डायरेक्ट हम एडिशन नहीं करते, उसमें फर्क था। ये कई बार डिफेंस लॉयर लेते थे कि भाई हाउ यू आर प्लीडिंग द अक्यूज्ड ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ द, तभी आप देखेंगे स्पेशल कोर्ट स्पेशल एक्ट्स होते हैं उसमें प्रावधान होता है कोर्ट सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है। जैसे आप पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं और बहुत सारे स्पेशल एक्ट हैं जहाँ पे 193 को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्पेशल पावर दिया ताकि इससे ना हिट हो जाए। बहुत सारे एक्ट हैं वो जो सर बात कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट काम है, वो बेस्ट की हैं सेशन जज को पावर्स एज ए अंडर दिस टैक्स। वो सेशन ट्रायल नहीं होल्ड कर रहे, ये बता दूं आपको, कल ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दे आर नॉट अडॉप्टिंग प्रोसीजर ऑफ दिस सेशन ट्रायल एज ए स्पेशल। कई बार एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस हो रहा था, तो अभी उस जो हमने वहां पे किया कि वो स्पेशल जज है, वो कहता है आई एम नॉट ए मैजिस्ट्रेट, वही कहीं कहा आई एम नॉट गोइंग मैजिस्ट्रेट, क्यों नहीं है स्पेशल जज, ही इज रिमांडिंग द अक्यूज्ड। एंटी करप्शन में जैसे आप एंटी करप्शन है, यूएपीए में है, ही इज अ स्पेशल एनडीपीएस एक्ट में है, पॉक्सो में है, ये आपका जो था ये वाला जो था वो एक और ड्रग्स के नीचे में स्पेशल पावर थी लास्ट में ये अपना थर्ड एडिशन को, जिसमें ड्रग वाला है ना सुपीरियस ड्रग उसमें स्पेशल उसमें भी ड्रग है। तो कमिटल जहाँ कमिटल होता है वहाँ पे कॉग्निजेंस। अच्छा एक और आ जाओ अभी कमिटल का प्रोसीजर में, अभी रिमांड कितने किस्म के, रिमांड वर्ड कभी नहीं है सीआरपीसी, लेकिन कस्टडी देनी है, किस स्टेज पे है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में कौन सा प्रोविजन लगेगा 167, ठीक है 167, और जब कमिटल करना है तो कितना कौन सा प्रोविजन होना है, तो जब पेडेंसी चलेगी फिर सीरीज होना है सीआरपीसी, यही प्रोविजन है। तीन रिमांड कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो यू हैव टू कन्फाइन डिटेन इन कस्टडी। तो क्या फर्क है अरेस्ट कस्टडी डिटेंशन, तीन अरेस्ट कस्टडी डिटेंशन और अरेस्ट बोलो मैंने हाँ जी। आगे ये मुझे बताइए आप, जब एक कोई बंदा होता है जो सस्पेशन में सेक्शन 54 पढ़ा आपने, उसमें सस्पेशन है, जैसे एक एनडीपीएस इंटरसेप्शन पार्टी का इंटरसेप्ट कर दिया कि यार इसके पास कुछ है, आपने देखा होगा जब ट्रायल करते हैं तो उसमें जहाँ आपने देखा होगा किसी को रोकते हैं, सस्पेशन होता है इसके पास है, तो वो पुलिस वाले लिखते हैं ये भाग रहा था, हम पुलिस को देख के हालात में दूसरा तीसरा होता है, उस वक्त क्या करती है पुलिस, आप समझो उसको डिटेन करती है। जहां पे आप गलती क्या करता है आइए तो उस वक्त तक वो डिटेन है, तो वो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मतलब डिटेन है, जस्ट जब उसकी सर्च हो जाती है, जब उससे रिकवरी हो जाती है तो आप उसको कस्टडी में लिया जाता है, डिटेन कस्टडी
देन फॉर्म ऑफ रेस्ट। रेस्ट कब करना है बताइए? उसमें सभी का एविडेंस अच्छा आगे चले जाओ और आगे जाओ। अभी अभी क्या है, अरेस्ट का क्या प्रोसीजर है, क्या अभी जो अरनेश कुमार की जजमेंट है, जो है अरनेश कुमार की जजमेंट बड़ी है 2005, जो बिहार के स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या कहा गया, उसने उसमें अमेंडमेंट भी सीआरपीसी में, यू विल फाइंड अमेंडमेंट ऑन दैट बेसिस। उन्होंने कहा है कि 7 ईयर तक उनको क्या करना है, उनको नोटिस देना है। बेल, और एक तो बेल आगे, बेल का आर्डर भी हो जाता है, तो उसमें बेल बॉन्ड बनने के लिए होनी है। तो इसलिए उसके आ जाओ, अगर बेल तब होगी, बात होगी जब अरेस्ट को रेगुलराइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और प्रोविजन आ गए, नोटिस देना पड़ेगा और रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेगा। भाई आप वाई यू आर गोइंग टू रेस्ट, तो वो आप देख लो सेक्शन को कंसर्न, ठीक है, वो 41A नोटिस देना है। नोटिस के बाद रिकॉर्ड रीजन करना है। अगर आपने 7 साल के नीचे किसी को, ठीक है, आगे आ जाओ, आप आगे जाओ, ये जो डीके बसु वाला केस, 7 में हम कॉन्फ्यूजन जाएंगे थोड़ा सा। उसमें क्या है गाइडलाइन कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो भी उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में आगे फिर उसको इन्फॉर्म करना है, आइडेंटिटी है, जो वो भी सारा इसमें आ गया है। काफी सारी प्रावधान लाइक सीआरपीसी में अभी आ चुके हैं उसी के मुताबिक, ठीक है। तो अरेस्ट कौन करता है, एक प्राइवेट आदमी करता है, प्राइवेट आदमी करता है, और कस्टडी। एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ये पुलिस केस डायरी क्या होती है, पहले पुलिस केस डायरी क्या होती है, सेक्शन कौन सा पहले बताइए। पुलिस केस डायरी, मैंने पूछा पुलिस केस डायरी की बात कर रहा हूँ, आप सुनो पहले मेरी बात। पुलिस केस भी बोल रहा हूँ, केस भी बोल रहा हूँ, ये मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाली मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाली जो केस वाली बात कर रही हूँ। और बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे ना जब मैं बता रहा हूँ आपको, सीडी फाइल मैंने जान के झूठ दिया पुलिस, तो आप गड़ के आप इधर उधर हो गए, यही उनका डर है। मतलब एक जो आप बात करें उस पर आ जाओ, FIR की एक फॉर्मेट है वो उसका, और वो रजिस्टर्ड है डायरी में, तो वो रजिस्टर्ड है। एक होता है NCR जो नॉन कॉग्निजेबल डालते हैं, और एक डालते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या है, अब मैं आ रहा हूँ किसके, ललिता कुमारी की तरफ। अभी मैं ललिता कुमारी की तरफ आता हूँ, पता है ललिता कुमारी की जजमेंट क्या है, 154, 156 फ्री जो है उसमें आ रहा है। ये यही करंट से निकलेंगे आपके, ये जो जजमेंटें हैं ना। 154 क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आप पूछोगे कहां से निकल, शेड्यूल उसमें जो कॉग्निजेबल डिफाइन किया, ठीक है ना। तो जो नॉन कॉग्निजेबल, तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पे भी डिस्क्लोज होगा, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बोलना। ये कभी नहीं बोलना, जो मैं सभी बच्चों को समझाता हूँ कि SHO को नहीं बोलना, क्योंकि FIR नहीं है, SHO नहीं है, चार्जशीट या चालान वर्ड नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनी हुई है। जी चलो बने हैं, इसको फॉलो करो, लेकिन अच्छी मतलब थोड़ा सा ये भी रखो तो स्टेशन हो। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन नहीं अवेलेबल, तो कौन बन सकता है इन हिज एब्सेंस, उसका मिनिमम रैंक क्या होना क्या चाहिए, मिनिमम रैंक क्या होना उससे चाहिए, नीचे हाँ जी, वो अब आप सही। अच्छा, जो रिमांड लेना है किसी केस में 167 के नीचे, उसका रैंक क्या होना चाहिए, FIR is a prerequisite to investigation। पहले एक मैं ये बता दूं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। मैं जोर से बोलता हूँ, समझ आ गए मेरे पास 2 रीजन थी जहाँ जम्मू में
बस यही थी, उन्होंने लगता हमारी को। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला नेगलिजेंस की है, इसमें इंक्वायरी, बाकी सब में कोई कुछ FIR लगाओ, उसके बाद 157 में एक पुलिस ऑफिसर इज नॉट रिकॉर्ड करेगा रीजन, अगर नई इन्वेस्टिगेशन करो यू कैन फ्रॉम द FIR लगाने के बाद 157 इसमें आपको 57 हो गया, इसमें इसी आदमी